Thank you very much. Today date is the 21st of January 2023 and time is 12 p.m. First of all, thank you very, very much for my attorneys for wonderful work to finalize the deal of GMR and Indian National Congress, India. Yes, now I'm owner of both. No, I'm not putting myself to interrupt their internal business. It's really a good drama and wonderful show is going on. Keep continue. Yes, 100%. And one more grand wonderful party in a 7-star is in raw for my attorneys. Thank you very much for wonderful effort and work. And I would like to ask them to all, please, to continue to invite all those who have an objection in court, whatever I'm dealing, I'm purchasing. It's really good for me to doing business in whether it's India, whether it's Pakistan, whether it's Ukraine or Russia or China, and my companies are doing well. And my second order for these all, for those all my attorneys, to run these all political parties. I would like to ask, request, as a Reserve Bank of India provided me 50 special officers to finalize my assets and to calculate all retired officers. Wonderful. Thank you very much, sir. The salary is expected as in a double you were getting on the time of retirement, and all those facilities in double. Yes, home alone. Yes, I copy the parrot's statement. Double or nothing. Double or nothing. Not you all are make me in the situation to be in situation. Make me be in situation to give them a real fight in a business to all those politicians. Now, I would like to ask to all those who are not in favor me. Now, I'm owner of Bharatiya Janata Party also and owner of Indian National Congress also. Now, it's really a no. I'm not saying what they are doing, but yes, I would not allow any kind of cannibalism, rape, kidnapping, extortions was happening and any criminal and gundas, because it's my effort to provide in a society. Why I'm purchasing these all political parties like Janata Dal United. I bought it. Yes, 100 and 140 political parties till now in entire world I purchased, maximum here in India and in Pakistan also. Yes, you can ask a list for my attorneys. So this is my effort to zero tolerance for criminals in politics. We love to scan profile of every politician who wants to be in politics, who wants to stay in politics. If we found any kind of a criminal profile, I'll definitely like to sack them. Whether it's a Congress, whether it's a Bharatiya Janata Party. I will never go for if some lady is a very beautiful. A case of Navneet Rana is yeah, definitely Navneet Rana is very beautiful, but we found Navneet Rana is in terrorism. We recovered 1,500 kg RDX when we allow to interrogate Navneet Rana from Pahadi Dheeraj, Delhi. And I would like to ask to Bharatiya Janata Party to show them way to out. Yes. Now the subject is because case of Navneet Rana, who is a councillor. First she was a councillor, then she became MLA or whatever, and visited to Indian Parliament. I will not allow any kind of any criminal
in politics, in parliament. It's my effort, and I'm bound in an oath to provide an honest politician to serve public. First whole thing. Now, a case which I like to discuss with the PFI, Popular Front of India, that Mr. Anish Ahmed, he asked me a question that a song I made and uploaded on a YouTube, Sarakta Jata Hai Rukh Se Naqab, Aista Aista, on a case was in media that burqas are not allowed in educational institution. And I made a song, the Sarakta Jata Hai Rukh Se Naqab, Aista Aista. And I added a media clip. So Mr. Anish Ahmed feels it's a insult for the Islam. No. Mr. Anish Ahmed, first of all, go and watch the women in Islam who asked me for a nikah, and I accepted. Now you are saying, why are you accepting? Why should not I? Who hate women? No. मैं तो सीधा बोलने वाला आदमी हूँ भाई. I'm not. Why should I? Why should I, Mr. Anish Ahmed? Why should I? आती लक्ष्मी कौन मना करता है? Yes, like case of a Maryam Nawaz Sharif in Pakistan, whether she's a Joya or Zara, like a Ravi Pirzada and Reham Khan. Well, I know what's coming in media. All our media personalities and film actors. In the beginning, the Reham Khan was a film actress, and I accepted her statement that it is, please don't mind. It's a case of only a case of a film and a Judah film, Pipa movie. I said, whatever you are doing, but don't do the cannibalism. It definitely will be against you. Why should I deny to get married with these all wonderful women? Since the beginning, as I came to know that 2.5 trillion US dollar is my media presence, so, and then I presented myself and I start making the video since then to now. So definitely, I'll love to earn some money from my self-media presence. I'm presenting myself in media by myself, shooting myself. Instead of you are saying, I will shoot you. I'm shooting myself and presenting in media and earning money. So what's wrong in it? Any problem to anyone? Now I'm giving you a wonderful news. Again, all my videos, which is around 2,100 and something videos, I uploaded on a YouTube. Myself videos. You know how much I earned? 4048. Write it down on a paper in money. 4,048 trillions US dollar is the worth of my videos. Now, this is the second, now third discussion. My reply, I already replied to Mr. Anish Ahmed. Be in media, Mr. Anish Ahmed from a PFI, you accepted in front of the reporter, Mr. Anish Ahmed, you are a cannibalist. Yes, in BBC documentary. Just 5 or 10 minutes back, I was in talk with you. Now, the second scenario, third discussion is, day before yesterday, I was on a visit, on a call to Delhi. When I was returning to home, on a Saket metro station, a lady in a burqa, but she was covering, she was covering her head, and her look was a Muslim. You know what she said? Everyone watch your statement. Hitesh is on a route. He is sending RDX information, our RDX information to police. And she was very beautiful. साकेत मेट्रो स्टेशन पे एक लड़की इस बात को कह रही है, बुरके में, मुस्लिम है, देखने में मुस्लिम ही लग रही है. अब पहले तो आउटफिट से ही पता लगता है ना. अब वो ये कह रही है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन इधर उधर मत दो, ठीक है. हितेश रूट पे है और वो आरडीएक्स ढूंढ रहे हैं ये लोग, ये बीडीएस में है ये लड़का जो है.
बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड में। कनाट प्लेस की लगभग जगह से आरडीएक्स रिकवर कर लिया इसने। आप जानते हो हमने कल कितना पैसा रिकवर किया है, और ये पैसा किसने छुपाया था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने डिमोनेटाइजेशन के बाद जो नोट छापा, वो जानते हो कितना था? हालांकि कुछ पैकेट हो सकते हैं कम या ज्यादा हो, जो मैं बताऊं, क्योंकि मैंने इंटरपोल को रिपोर्ट भेज दी। लिखो, 26,000 करोड़ का एक पैकेट है। दिल्ली में ही मिले हैं, कनाट प्लेस में मिले हैं। 26,000 करोड़ का एक पैकेट, और ऐसे पता है कितने पैकेट हैं? 2,000। 26,000 करोड़ का एक पैकेट और 2,000 पैकेट है वहां रखे हुए, और साथ में गोल्ड रखा हुआ है 8 लाख करोड़, 8 लाख टन। बस नहीं सर, और लिखो, 26,000 करोड़ का एक पैकेट, 500 रुपए के नोट हैं। 26,000 करोड़ का एक पैकेट है सर, और जानते हो कितने पैकेट रखे हैं वहां? सोचो। जी हां, 60,000 पैकेट हैं, 60,000 पैकेट। और लिखो, हर करेंसी मिली है। 20 लाख टन गोल्ड के साथ कनाट प्लेस में जमीन के नीचे बाकायदा बिल्डिंग बनी हुई है उनके बेसमेंट में, बहुत दूर तक बेसमेंट है। और रखवाने वाला यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। बाद में जब रेड हुई तो इसका जवाब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। जब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछा, कहते जी हमारा पैसा नहीं है ये। फिर कहते जी इसने लड़कियां किडनैप कर रखी थी, बच्चे किडनैप कर रखे थे, कई जगह आरडीएक्स लगा हुआ था, तब इसने ये छापा है। और जाना कहाँ था ये? कह रहे सर इसने जो है पाकिस्तान में एक ऐसा बंदा है जिससे कंटिन्यूसली टच में था। कौन है वो? जानते हो कौन है? आरिफ अलवी, पाकिस्तान में। और वहां से ईरान ले जाने वाला था ये पैसा। तो मैं तो बुरा लगूंगा ही लगूंगा ना सर इन नेताओं को। मैंने जिस दिन रिपोर्ट भेजी उस दिन मैंने ये नहीं बताया पैसा किसने रखवाया है। कल रात को इतना मारा है ना इसको। कल रात को ये प्रधानमंत्री कार्यालय से निकला, ज्यादा शाना बन रहा है, अपने नाम से किसी और को मरवा रहा है। कल रात को ये आराम से प्रधानमंत्री कार्यालय से निकला है रात के 1:30 बजे। इसकी टीम के 40 लोगों को पकड़ा हमने, पर भीड़ बहुत ज्यादा थी वहां पे। नकली पुलिस, पिप्पा पुलिस लेके घूम रहा, नहीं घुसे बीच में। इतना मारा ना इसको वहां पे। जानते हो किस लिए? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल स्वर्गीय, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल स्वर्गीय विश्वजीत शर्मा के घर पे हमला करना था इसने। जानते हो क्यों? क्योंकि विश्वजीत शर्मा के पिता का नाम सुदर्शन है। इसको इतने बड़े नाम पसंद नहीं है। विश्वजीत शर्मा की हत्या करवाने के बाद समझे, ये सुदर्शन शर्मा को मारना चाहता था। सुदर्शन शर्मा जी अपने घर पे छत पे उन्होंने एक और कमरा बनाया हुआ है, वो भी दिल्ली पुलिस में रह चुके हैं, विवेक गोगिया के एसओ रह चुके हैं। इसने विश्वजीत शर्मा की हत्या इसलिए करवाई क्योंकि इसका नाम विश्वजीत था। कल पूरे दल बल के साथ ये उसके घर पे हमला करना चाह रहा था रात को। तब मैंने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कॉल करी है। मैं वो आदमी जो रात को कह गए थे कॉल ट्रेसिंग पे था। कॉल सुनते 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 कॉल आ रही थी उधर से। इसकी भारतीय जनता पार्टी के, इसकी टीम के 40 लोग पकड़े हैं, उसमें से एक लड़की भी है अपूर्वा सिंह, वो भी रंगे हाथ पकड़ी गई है। और इनका मकसद क्या था? विश्वजीत शर्मा के घर के बगल में एक शादी के फंक्शन में प्रशांत पटेल भी पकड़ा गया है। जी हां, प्रशांत पटेल इसका लड़का है।
विश्वजीत शर्मा के घर के बगल में एक शादी के फंक्शन में स्मृति जुबिन ईरानी और ये सब मौजूद थे, और ये सुदर्शन शर्मा की हत्या करना चाह रहे थे। और आप बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे ऑब्जेक्शन लगा रहे हो। अरे उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिखाया यार, मुझसे बात करना, मुझसे बात करना। 42-40 रॉ कॉल मैंने ट्रेस करी थी, कॉल मैंने ट्रेस करी है। इतना मारा ना इसको वहां पे आरकेपुरम सेक्टर 3 के लोगों ने, रंगे हाथ पकड़ा गया ये। अबे उसके घर परिवार की सिक्योरिटी में मैं खुद मौजूद हूं बे। क्या बात कर रहा है तू? और क्या कौन है तेरे ये बंदे? वहीं जाके मारेंगे वे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में ही। और तू बोलता पीएमओ में पीटेंगे तेरे को। आज सुबह भेजू अभी। तू जानता नहीं है आरकेपुरम सेक्टर 3 वालों को। सरकारी कॉलोनी में घुस गया। इसने क्या करा, पहले विश्वजीत शर्मा के घर के आसपास प्रधानमंत्री कार्यालय का गलत इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नॉन आईएएस ऑफिसरों को, नॉन आईएएस लड़के लड़कियों को, नॉन गवर्नमेंट प्रोफाइल लड़के लड़कियों को फ्लैट दिलवा दिए। खुद वहां पे एक लड़की पकड़ी गई है जिसके लिए नवाज शरीफ का फोन आया रात को। बेवकूफ समझ रहे हो? हयात रेजेंसी वाले का फोन आया, हजारत ने खुद फोन किया है। जानते हो कौन है वो लड़की? जोया पकड़ी गई है कल। जी हां, कैनिबलिज्म, बाल्टा ग्रुप। जी हां, मैंने भेजी थी रिपोर्ट जोया को सिक्योर करने के लिए और अपूर्वा सिंह को। मैडम हाथ पैर तोड़ देगी पब्लिक। 2,500 लोग कल रात को इकट्ठा होने वाले थे उसके घर के पास। अरे मैं कह रहा हूं बीबीसी प्रोफाइल ने तो कुछ नहीं दिखाया। इन्हीं प्रोफाइल के आगे मेरी वीडियो जुड़ी हुई है, जो मीडिया क्लिप लग रही है ना, इन्हीं के आगे मेरी क्लिप जुड़ी हुई है। मैं बताता हूं ना तुम्हारे को इसकी असलियत। दो औरतें और पकड़ी गई हैं, उनको बंद करके रखा हुआ है, पुलिस वालों ने रखा। अबे पुलिस कॉलोनी है वो, आरकेपुरम सेक्टर 3 पुलिस कॉलोनी है वो। दिल्ली पुलिस वाले हैं सबके सब। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चला रहा है बे? दिल्ली पुलिस में, मैं वही कह रहा हूं सर, दिल्ली पुलिस में विश्वजीत शर्मा की हत्या का कारण सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी था। और वो ये था क्योंकि उसका नाम विश्वजीत था। नाम बहुत बड़ा, इतने बड़े नाम पसंद नहीं है तुझे? हैं? कल ये भी पिटा है, कल इसका बेटा भी पिटा है रात को। 1:30 बजे की बात है। मैं खाना बना रहा, ठीक है, खाना बनाते बनाते कॉल ट्रेस हुई विश्वजीत शर्मा की मम्मी के नाम की। मैंने यार वो तो ऐसे बात नहीं करते। मैंने कहा वो तो, मैं कहा बेटा गाली तो खाऊंगा मैं, बहुत टाइम हो गया मैं घर नहीं गया मिलने उनसे, ठीक है। और मुझे पता था वो तो छुटते ही पूछेंगे, वो तो गुस्सा करेंगी। मेरे यार दोस्तों के यहाँ यार मैं अकेला आदमी रहा हूँ जिनको घर के अंदर आने की इजाजत रही है। अब बात हो ही रही थी, बीच में एक आवाज आ रही बार बार। मैं कई दिन से इस आवाज को ढूंढ रहा था। तो दो बंदों ने क्या करा, पहले इसने देखो विश्वजीत शर्मा के घर में होस्टेज कैसे लिया उनको। पहले जो है 2 दिन पहले एक आदमी विश्वजीत शर्मा का रिश्तेदार बन के उनके घर पहुंचा, ठीक है। हाँ, उनका चल भाई कोई बात नहीं, भाई बड़े लोग हैं, कोई बात नहीं, आएगा भी होगा। वो पूछ भी रहे, वो उनको थोड़ा शक भी हुआ। 2 दिन से रुका हुआ था और एक बंदा इस सिचुएशन पे नजर बना के रखा हुआ था, वो बाहर खड़ा था। कॉल ट्रेस हो गई और जैसे ही आवाज पहचान में आई, मैंने यहां से जो है क्या कहते हैं अपनी टीम को बोल दिया, लड़कों को। वो लड़के जो थे वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने जैसे ही क्या कहते हैं मेरी आवाज सुनी, मैंने कहा निकालिए उसको जरा घर से बाहर, कौन घुसा हुआ है अंदर। वो जब बाहर ले गया तब पीटते हुए लेके आए बाहर।
फिर उसके बाद जो है मोदी को पता लगा, मोदी पता है क्या कहता, मार दिया, पीट पीट के मार दिया जी 3 लड़के तो हमने उसी समय। तो अपूर्वा भी कह रही कि तूने हमारे बंदे कैसे मार दिए, तेरे हाथ पैर तोड़ देगी पब्लिक। तूने मुझसे शादी नहीं करी होती ना, मैं कुछ कहता नहीं तेरे को, तोड़वा देता तेरे को मैं तबीयत से बीच में कई जगह। और जोया तू भी सुन ले, छोड़ दे सब खत्म, इंडिया में रहती है जोया। और मेरा मेरा बड़ा भाई भी मौजूद था, मुकेश भी मौजूद था वहां पे। मुकेश भी आर के पुरम सेक्टर 3 में, उसको क्या कहते हैं, क्लास 1 वो मिल गया है, D2 फ्लैट्स मिल गए हैं उसे। और मुकेश ने भी कॉल ली, मुकेश भी क्या कहते जानता था विश्वजीत को, हम तो यार दोस्त तो थे ही। वहां फिर और बंदे भी इकट्ठे हो गए रात को। तेरी ऐसी तैसी कर देंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय में निकाल निकाल के मारेंगे। एसपीजी वाले भी पिटोगे बेटा, अब तुम्हारा पिटना शुरू है सबका। सेक्टर 3 वालों से पंगा लिया तुमने, हैं? तू जानता भी है विश्वजीत कौन था? नहीं पता तुझे? अब पूरी बीजेपी को मारेंगे वहां पहुंच के। अब मेरी हंसी नहीं रुक रही है बे। मतलब लक्की के घर परिवार पर हमला कर दिया? अच्छा जी। तू सरकारी ऑफिस में जहां जाएगा वहां पिटेगा। अब पता है तुझे, सरकारी कॉलोनी है वो। नहीं थी, मैंने बोला वो तीन तीन, एक 2 लड़के वो निकाले, एक और था, फिर एक पिप्पा पीसीआर पहुंची। मैं कहा पीसीआर जब्त कर इसकी, मैं इन्हें भी मार दे। अब हम बर्दाश्त नहीं करते विश्वजीत शर्मा के घर परिवार के बारे में जरा सा भी। मेरे क्या बजर लगाएगा तू? बाकी कितने पुलिस वाले पकड़े? अब वो कौन है बे? अब वो दिल्ली पुलिस कॉलोनी है। पूरी कैबिनेट पिटेगी, पूरी कैबिनेट। बहुत मारेंगे। बाल्टा ग्रुप है तुम्हारा, है? तो तेरे को 26 जनवरी में परेड कराते हैं, वहीं मार इसको जाकर के पीएमओ में ही। बाहर आइए जरा, हमें कोई जरूरत नहीं है मीडिया कैमरा हो ना हो, एसपीजी वालों ने भी मार, कॉन्वॉय हो ना उसे रोक के मार, तोड़ दे इसको तबीयत से। घर में कैसा घुसा, कौन था वे डिजाइनर? अपूर्वा के भी देख खींच के बने ही बन दे इसमें, जहां पड़ी जहां पड़ दे। इसको जोया के भी दे खींच के। नवाज शरीफ जी क्या करेंगे इसमें? तेरे समझ नहीं आ रही है क्या? अब विश्वजीत शर्मा नाम है उसका, वो ज्यादा बड़ी जासूस बन रही है क्या? तेरे को बोला ना घर आ चुपचाप, हम अपने आप देखेंगे। तू जानती है भारत सरकार के 4 सबसे बड़े ऑफिसर जो है ना, उनकी सिक्योरिटी में है, उनमें से एक मैं हूं। भारत सरकार के 4 शेर गिने जाते हैं, एक मैं हूं और 3 और हैं वहां ड्यूटी पे। वो जानती है क्या हाल करेंगे तुम सबका। भगना नहीं कोई है। छोड़ दे ये सब। ओ मैडम अपूर्वा सिंह, ये आल्टा बाल्टा छोड़ दे, ने बाल्टी बाल्टी पड़ेगी तेरे में, बाल्टिस्तान का कोड। बाल्टा ग्रुप, बाल्टिस्तान वाले हो तुम? अच्छा जी, बाल्टी ही पड़ेगी तुम्हारे, घुमा घुमा के बाल्टा ग्रुप बना देंगे तुम्हारा सबका। ये लक्की शर्मा के पिताजी सुदर्शन शर्मा, उनकी वाइफ, उनकी बहू, उनके दोनों बच्चे, मतलब पोता पोती को मार के काट के खाना चाहते थे ये। विशेष शर्मा के घर के आसपास कोई इवेंट नहीं होगा, चल शादी ब्याह दूर होगा, अलाउड ही नहीं है। एसपीजी सिक्योरिटी ऑन करो।
एसपीजी इसलिए कह रहा हूं शायद बच जाए इनमें से कोई। हमारी सिक्योरिटी में हम तो मार देते हैं भाई। गांधी, गांधी से मिलना है, वहां गांधी भी है एक। मारेंगे बहुत बेटा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। सरकारी कॉलोनी में रहते हैं बेटा, इतना मारेंगे ना। रात को मैं कॉल सुन रहा, मैंने यहाँ से रिपोर्ट भेजी, रिपोर्ट भेजने के बाद जो बाकी सारी चीजें भेजी, A to Z भेज दिया। मैं कहा पहले इसको जोया को और अपूर्वा को सिक्योर कर, उसके बाद देखते हैं। 17 लोग थे ना तुम वहां पे? नहीं 14, 11 आदमी और 3 औरतें, उसमें से एक स्मृति जुबिन ईरानी थी। नहीं ये जोया और अपूर्वा नहीं, जोया और अपूर्वा तो उधर रह रहे थे, वो साउथ इंडियन मंदिर जो है वो तो अपने फ्लैट पे चली गई थी। क्या नौकरी है आपकी प्रधानमंत्री कार्यालय में अपूर्वा सिंह? हटाओ भाई इनको, नौकरी से हटाओ इनको। किस किस को सरकारी फ्लैट मिले हुए हैं? रवि पीरजादा वगैरह भी वहीं रह रही है। चलो यार दिमाग खराब हो गया लड़कियों को बचाते बचाते यार। बढ़ाओ तुम्हारा भी जासूस और पुलिस वाला। तेरा भी देवता बनाते हैं, अभी तू रुक, कैनिबलिस देवता बनाते हैं तेरा, तू रुक तो सही। जाइए बीजेपी ऑफिस। हाँ कौन है भाई? भाई इधर ही हो बे। बाल्टा ग्रुप कौन है? लाइन लगवा सबकी बाल्टा ग्रुप वालों की। ना ना कुछ मत बोलियो, बोले बाल्टा ग्रुप कौन कौन है भाई? विश्वी शर्मा के घर पे हमले की साजिश किसने रची थी? इसको बुलाओ, संजय अरोड़ा को बाहर बुला, बाहर आओ। इधर आइयो। हम बना, अब तू पुलिस वाला तो हम कौन है बे? मैं ना होली पे गया, मैं उसी दिन जो है गुलाल रख के आ गया। मैंने कहा सारे लाल यहाँ पे, अम्मा तू चिंता ना कर। नहीं नहीं अपनी अम्मा को बोल रहा हूं मैं कहा ये सब पिटेंगे अब तू देख। अबे सिक्योरिटी रीजन से मैं खुद नहीं जाता वहां पे। $2,500 बंदों की लिस्ट मांग, कौन कौन थे 2,500 ये दे। अबे पता है अब होगा क्या? मैं समझाता हूँ। लक्की के यार दोस्त पता है कौन कौन है? हाफिज है, शकील है, बबलू है, जफर खान है, अटैक है, नीरज चोपड़ा है, अनुज है। अभी तो रुक तो सही। अबे नहीं, डाबला है, मिंटू है। और हितेश भाई तो चुपचाप कॉल सुन रहे हैं। अबे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हूं मैं। रात को मेरे को भी गालियां पड़ गई। लकी आंटी कह रही, कहती हो कमीना है कहाँ पे? मैं कहा लिख ले, एक ना हरामी कहा था, दूसरे ने कमीना, ये नाम भी हमारा हुआ। सिक्योरिटी रीजन से नहीं आ सकते ना। नहीं नहीं मेरी अपनी सिक्योरिटी चलती है। बाहर बुला, चले जरा। इज्जत तू नहीं बट। दिचाऊ मित्राऊ सब बताएंगे तुझे, तू चिंता मत कर। अभी भरते पहलवान वहलवान सब बताएंगे तुझे। क्या क्या करने के मूड में थे? ये करने के मूड में थे भाई, और कोई बात नहीं है। तू रुक यार जरा। अटैक मिला मेरे को वहां पे, मैंने पहली बार देखा उसे, मैं तो जानता नहीं था। दिल्ली के एंड पे, ठीक है, अच्छा ये है देश। मुझे नहीं, ये है मोदी। मारेंगे बहुत। छोटू को भी बुलाए, जितने गांजे सब बुलाए रहे ना।
बंटी, ये वाला नहीं, असली असली वाला बंटी भी आएगा। क्या बात हुई थी? इनकी सरकार हम बनवाते हैं। राहुल गांधी भी पहुंचने वाला था। मैं मारेंगे बहुत भाई, मैं पहले बहुत। ओ भैया, पीटने से पहले पूछ लियो आराम से। हितेश से शादी किस किसने करी है? मैडम आप जरा इधर हो जाओ। थोड़ा जोर से धक्का दे दियो। बच गई। अपूर्वा सर की जो लात मारता मुकेश। मैं खड़ा खड़ा देख रहा है तो कह रही है हितेश देख कैसे पा रहा है। मैंने कहा आंख बंद करके देख, तुझे मैं दिखाई दूंगा। आंख बंद करके देख रहे ओ 19 फुट हाइट है। मैंने कहा देखना मैं कहां खड़ा हूं। मैं कहा यार मेरा असली रूप मत देखो, बात मत। फिर तेरे समझ नहीं आ रही थी? पहली बार भी इसीलिए पिटवाया था मैंने पार्लियामेंट में सारे नेताओं को। बैकलट निकाली जरा इनकी ऐसी की तैसी। समझ नहीं आ रही तुम्हारे? हैं? वो विश्वी शर्मा के घर के ठीक सामने निर्भया का कैनिबलिज्म हुआ था। ठीक है, जोया तो ये कह रही थी कि हितेश ने बोला कि भाई मरियम नवाज का भाई है। कह रही मैं तो इसलिए देखने आई थी कि कौन है मेरा भाई। फोटो देखी उसकी? इसलिए सब पिटेंगे, सब पिटेंगे ये, और तबीयत से मारेंगे। का चश्मदीद गवाह था विश्वजीत शर्मा। ठीक है जी। जब निर्भया की हत्या हुई, उसके विश्वी शर्मा के घर के थोड़ी नजदीकी एक शादी ब्याह का कोई फंक्शन था। उस फंक्शन में मोदी भी पहुंचा और निर्भया को जहां गिरफ्तार करके रखा गया था या होस्टेज रखा गया था, विश्वी शर्मा को पता नहीं था। विश्वी शर्मा वहां पे जो है मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ था। उसे पता तो था कुछ होने वाला है। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली थी और उसके घर से जो है AK-47, हमला तो बड़ा था पर ज्यादा वो बोल नहीं पा रहा था। क्यों मैंने तो नहीं जानता। तो लक्की को मोदी ने खुद यह बात कही, हाँ भाई तू दिल्ली पुलिस कमिश्नर है, दोबारा मत बोलियो हमारे मामले में। तो ऐसे करके जो बैठा था ना क्या कहते हैं लक्की, रिवॉल्वर उसने दोनों हाथ से पकड़ी थी ट्रिगर पे। ठीक है, कह रहा निकल ले यहां से और नहीं तो अभी चलेगी। तो ये कहकर कहने के बाद मोदी वहां से निकल गया। यही मोदी जो प्रधानमंत्री बना हुआ है, बिल्कुल यही था। और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं वहां पे इन्होंने ऑन रोड निर्भया की हत्या कर दी। मोदी था, बिल्कुल था। उसी वजह से विश्वी शर्मा की हत्या हुई। जब विश्वी शर्मा को घेर के इन्होंने, जी हाँ, सेक्टर 3 की रोड से जब अंदर आते हैं, विश्वी शर्मा रात को आ रहा था तो दोनों तरफ कई लोग खड़े हुए थे और विश्वी शर्मा को जो है कोकीन की हैवी डोज दी गई जबरदस्ती और फिर मुंह में पाइप डाल करके कोकीन साफ किया गया। वीडियो हमने देखी है सर। और ये उस समय भानु भी मौजूद था। अब भानु को किसी तरह मौका मिल गया मुझे फोन करने का, तब उसने मेरे को यह कहा कि तेज भाई क्या कहते हैं लक्की भाई नहीं रहे। और जब मैं यहां से उठा तो इन सबको बोल दिया गया कि उसका एक दोस्त आ रहा है, ठीक है, तुम सबकी वहां चोदेगा वो तबीयत से। ये लोग वहां से भग गए थे और विश्वी शर्मा को इन लोगों ने, जी हाँ, सफदरजंग हॉस्पिटल में मॉर्चरी में एडमिट कराया, मतलब वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जहां से मृत घोषित किया गया और मॉर्चरी में छोड़ दिया गया। मैं पहुंचा था सुबह 3 बजे करीबन हॉस्पिटल। यह काम बहुत सीक्रेटली किया गया और इसमें भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय इन्वॉल्व था और SPG सिक्योरिटी गार्ड। यह है असली रिपोर्ट।
अब भी सुनवाई नहीं है? हम सुनवाई करेंगे अब। समझ में आ गई? जोया और अपूर्वा। मैडम मैं तो था नहीं, मुझे किसने लिख के दे दिया? सुन लो ना, मैं देख रहा हूं ना सब। आपको यही तो नहीं पता मैं हूं कौन? आरकेपुरम सेक्टर 3 के एंट्रेंस गेट के राइट हैंड साइड से जो रोड अंदर जाती है, वहीं पे अपूर्वा और जोया खड़ी थी। और मोदी बार बार ये कह रहा था, क्योंकि कॉल पे मुकेश भी पहुंच गया वहां पे, तो मोदी कह रहा मुकेश को मत भागने देना। हम्म। अच्छा जी। ओ मतलब हम यहाँ कुछ सुन ही नहीं रहे, हम कुछ देख ही नहीं रहे हैं। अच्छा। चेक करो पूरा विश्व शर्मा का घर, कौन कौन मौजूद है वहां। जब इन्वेस्टिगेशन हुई, पूछताछ हुई, तो कहा, ये बताया ये गया कि ये उस दिन के रात के हत्याकांड की चश्मदीद गवाह थे, क्योंकि लक्की विश्वी शर्मा की वाइफ के पास AK-47 थी, वरना ये उस रात को सुदर्शन शर्मा और विश्वी शर्मा पे भी हमला करते। AK-47 होने की वजह से और MK9 होने की वजह से हथियार मौजूद थे वहां पे, इसलिए ये हमला नहीं कर पाए। विश्वी शर्मा खुद वहां मौजूद था रिवॉल्वर लेके। पर अचानक एक लड़की को उस कमरे से बाहर लाया गया, घेर के उसकी हत्या कर दी गई, उसका गला काट दिया गया। यह असली रिपोर्ट है। दिल्ली पुलिस वाले लिख सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ओवर है सर विश्व शर्मा की हत्या की। आरकेपुरम सेक्टर 12 पड़ेगा थाना, सेक्टर 12 है। आरकेपुरम सेक्टर 12 थाना, रिपोर्ट ले लो भैया, ठीक है।